ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ دبیر پورے میں مسلم سماج کو شرم سے پانی پانی کر دینے والا واقعہ۔ رمضان میں مسلم نوجوان نے روزے دار ماں کو گھونسے مار کر ہلاک کر دیا۔ مرکز پاکستان کے تعلق سے اپنے موقف اور پالیسی کو واضح کرے، صدر مجلس کا مطالبہ۔ پمپور میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں کا آغاز، فلک نما شالی بنڈا اور وجے نگر کالونی میں سکولز کا افتتاح۔ اور اتوار کو کیسرا پولیس حدود میں پیش آئے ایڈوکیٹ کے قتل کا معمہ، 24 گھنٹوں میں حل، ملزمین گرفتار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبیر پورے میں قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے مسلم سماج کو شرم سے پانی پانی کر کے رکھ دیا ہے۔ اکرم نامی نوجوان نے محض ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ دبیر پورہ علاقے میں رمضان کے مقدس مہینے میں ایک بیٹی نے نفسانی شر اور ایمانی خرابی کا ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا، جبکہ اس کی ماں کو اسی کے اپنے بھائی نے اتنے گھونسے مارے کہ ماں نے دم توڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اچانک یہ منظر دیکھ کر گویا بیٹی کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ 30 سالہ اکرم جابری نے اخلاق، کردار، تہذیب، ایمان، شرافت اور انسانیت کے سارے حدود پھلانگتے ہوئے اسی کو جنم دے کر پالنے پوسنے والی ماں کو اپنی درندگی کا شکار بنایا۔ اس کو بہیمانہ صفت کہیے یا نفسانی شر کا ننگا ناچ کہ ایک مسلم نوجوان نے نہ صرف یہ کہ رمضان کے مقدس مہینے کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ روزے دار ماں کو حالت روزہ میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت کہی گئی ہے، اپنے ناہنجار اور ناخلف بیٹے کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔ اکرم جابری کی بے خوفی اور دیدہ دلیری نے مسلم سماج کی عزت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس غلاظت کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے بد کرداروں کا سماجی بائیکاٹ کرے، بلکہ ایسے ناہنجاروں کے ساتھ قلا ملا اور دوستی رکھنے والوں کو بھی اپنی صفوں میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اکرم جیسے کئی اور درندے سماج کا حصہ بنتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک روز پہلے ہی اسی طرح کا ایک اور انسانیت سوز واقعہ بڑا بازار فرسٹ لانسر میں پیش آ چکا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ اس درندے کا نام بھی اکرم ہی ہے۔ فرسٹ لانسر والے اس اکرم نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتے ہوئے اس کے سر پر مسل سے حملہ کر دیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے لاش کو گلی میں لا کر پھینک دیا اور خود کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ مسلسل 2 دن سے پیش آنے والے 2 واقعات کیا حیدرآبادی مسلمانوں اور ان کی تہذیب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے بچوں کو کپڑے پہنانا اور کھانا کھلانے کو تربیت کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ کیا بچوں کی اخلاقی اور دینی تعلیم و تربیت ضروری نہیں ہے؟ کیا ایمانی حرارت پیدا کیے بغیر بچوں کو صحیح مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ کیا بچے سچے مسلمان بنے بغیر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اب ہر حیدرآبادی کو ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہوں گے، ورنہ ایک شرم سے پانی پانی کر دینے والے سماج میں جینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پمپور میں CRPF کے 8 جوانوں کی دہشت گرد حملے میں ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت کو پاکستان کے بارے میں اپنے موقف اور پالیسی کو عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔
صدر مجلس نے کہا کہ کوئی بھی مذہب معصوم عوام کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ایک گولی کے بدلے 100 گولیاں چلانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں اس کا موقف بالکل غیر واضح ہے۔ بیرسٹر اویسی نے RSS کی مجوزہ افطار پارٹی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ RSS ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے اور وہ ہمیشہ سے اقلیتوں کے حقوق کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ The killings of 8 brave CRPF personnel is highly condemnable, and this act was done by terrorists, which everyone should condemn. But what really surprises me is that the present union government, there is no public denunciation of Pakistan on this act which took place which resulted in the killings of 8 CRPF security personnel. So we do not know what is the government policy on Kashmir. We do not know what is their policy on Pakistan. And such a heinous act took place, so there has to be a public denunciation. Why is the government saying a neighbor, or if one bullet is fired, then countless bullets will be, 8 people have been killed and many have killed in the past also. So there has to be a public denunciation. The government must come out and say this is our policy, but on both these counts they are lacking. And as far as, in my opinion, anyone who commits a terrorist action cannot hide behind the garb of religion, because no religion allows you to kill innocent people, and that is the understanding of mine. شہر میں اقلیتی اقامتی تعلیمی اداروں کا پیر سے آغاز ہوا۔ فلک نما، شالی بنڈا اور وجے نگر کالونی میں تعلیمی اداروں کا افتتاح عمل میں آیا۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے شالی بنڈا اور بہادر پورے کے فلک نما میں اقامتی تعلیمی اداروں کا نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور معظم خان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلیل اور مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ KCR حکومت ریاست میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کی پابند ہے۔ مسلمانوں کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے بڑی تعداد میں اقامتی تعلیمی اداروں کا آغاز کیا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت 19 اقامتی تعلیمی اداروں کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت مختلف اسکیموں کے ذریعے اقلیتوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کا اقدام قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی عملی زندگی میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ علم کا حصول بچوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سرپرستوں کو علم کے میدان میں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وجے نگر کالونی میں بھی اقامتی اسکول کی افتتاحی تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شرکت کی۔ طلباء اور سرپرستوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ تلنگانہ ریاست میں تعلیمی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے 9335 ودیا والنٹیئرز کے تقرر کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تحت باقاعدہ ٹیچرز کے تقررات تک ودیا والنٹیئرز کی خدمات سے استفادہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹرز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے شہر کے لیے 2 نئی ایمبولینس گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بتایا گیا کہ ان میں سے گاڑی گاندھی ہاسپٹل اور ایک صنعت نگر کے اربن ہیلتھ سینٹر کو حوالے کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں شعبہ صحت کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور عوام کو بہتر علاج کی فراہمی بھی حکومت کا اہم مقصد ہے۔ لاڑہ بازار کے تعزین کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ کارپوریٹر محمود قادری، مقامی تاجرین اور عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔
मुशीराबाद फूलकपुर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी जिम्मेदारों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। मुंबई हज हाउस में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन, पार्टी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती वजीर हरीश राव की तरफ से पुलिचिंतला प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ नाइंसाफी करने के साबिका कांग्रेस हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिचिंतला प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिया गया और उनकी बाज़ाबातकारी भी की गई। उनका कहना था कि अगर हरीश राव कांग्रेस की तरफ से नाइंसाफी के अपने इल्जामात को साबित करते हैं तो वो ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि प्रोजेक्ट्स के नाम पर वजीर आला धांधलियां कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि अपने ही आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन में तब्दीलियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के लीडर का कहना था कि वो प्रोजेक्ट्स में हो रही धांधलियों के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने कहा है कि अराजी हुसूल कानून पर अमल करने में टीआरएस हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए एल रमना ने कहा कि मामू और भांजा मिलकर रियासत के अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रातों रात मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं और इससे बदला भी जा रहा है। एल रमना ने कहा कि प्रोजेक्ट की आड़ में बदनुमानियों में मुलविस वज़रा को अवाम से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करना होगा। दूसरी तरफ असेंबली में अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अगर 2013 अराजी हुसूल कानून के तहत प्रोजेक्ट मुतासिन को मुआवजा अदा करती है तो कांग्रेस इसका खैर मकदम करेगी। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि अराजी का हुसूल किसानों की मर्जी से होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अराजी के बदले अराजी और मकान के बदले मकान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को धोखा देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसकी आड़ में किसानों को धोखा नहीं देना चाहिए। उधर टीआरएस ने मौलाना सागर प्रोजेक्ट पर तेलुगुदेशम की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर जी रामचंद्र ने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू नए दारुल हुकूमत के लिए कौन से कानून के तहत अराजी हासिल कर रहे हैं, इसकी रेवंत रेड्डी को वजाहत करनी चाहिए। जी रामचंद्र ने कहा कि रेवंत रेड्डी अराजी हुसूल एक्ट से वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत प्रोजेक्ट के मुतासिन की मदद के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। साउथ जोन में बरक़ी सरबराही में खलल और बिलखुसूस शहरी के औक़ात में बरक़ी मुनक़ते होने से अवाम को होने वाली तकालीफ पर हुकूमत और महकमे बरक़ी ने इजहार माजरत करते हुए माफ़ी तलब की है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की दावत इफ्तार के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने बार बार नुमाइंदगियों व तयक़ुनात के बावजूद बरक़ी सरबराही में खलल की वज़ीर आला से शिकायत की थी, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए केसीआर ने महकमे बरक़ी के ज़िम्मेदार अहदेदार कमालुद्दीन अली खां को साउथ जोन रवाना किया, जहां उन्होंने मुतल्लिक़ा आला अहदेदारों और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के साथ चारमीनार सब स्टेशन में इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तफ़सीलात और हक़ाइक़ से आगाही हासिल की। उन्होंने साउथ जोन में महकमे की कोताही का एतराफ़ करते हुए सदर मजलिस और अवाम से माफ़ी तलब की और साउथ जोन में कैंप करते हुए इस अहम तरीन मसले की यकसुई करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने बरक़ी मुनक़ते होने की किसी भी शिकायत पर लापरवाही बरतने वाले अहदेदारों के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई करने का भी ऐलान किया।
कमालुद्दीन ने अवाम से दरख्वास्त की है कि बरक़ी से मुताल्लिक़ कोई भी शिकायत हो तो दिए गए नंबर पर रब्त करें। कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये हम सुन रहे हैं और अखबारात में ये छप रहा है कि पुराने शहर में जिसे हम साउथ सर्कल कहते हैं, तकरीबन रोज़ाना ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, आवाम को तकालीफ पहुंच रही है, जिसका हमें बेहद अफसोस है। बात यहाँ तक गई कि सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने आपकी आवाम की शिकायत, सारिफिन की शिकायत को सीएम तक पहुँचाया। ये मामला बहुत गहराई का है और इस मामले को मैंने चीफ हमारे जो जनरल चेयरमैन हैं उनसे दोपहर में और शाम में बात की है। चेयरमैन साहब खुद एक दिन और या 2 दिन में एक मरतबा चार मीनार CBD में आएंगे और उन्होंने ये बात सदर मजलिस से भी कही है। उनसे ये वायदा किया है कि वो एक दिन और चार मीनार सब स्टेशन को जाएंगे और यहाँ का मुआयना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज से ही करंट का कोई प्रॉब्लम ना होगा। तावक्त है कि कोई टेक्निकल वजह हो, टेक्निकल वजह अगर नहीं है, कोई लिथार्जी है हमारी तरफ से, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और लिथार्जिक एम्प्लॉइज़ के ऊपर हम एक्शन लेंगे। ये हमारे चेयरमैन साहब का फैसला है। उन्होंने आज शाम में 8:30-9 बजे के करीब मुझसे ये कहा कि जो लिथार्जिक एम्प्लॉइज़ है उनके ख़िलाफ़ यकीनी हम कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ पर रोज़ाना आऊँगा इंशाअल्लाह और 12:30 और 1 बजे तक यहाँ पर रहूँ। तो आखिर में आप बातों करी रेजिडेंशियल एरियाज में प्रॉब्लम होते हैं, कमर्शियल एरियाज में होते हैं। बात ऐसी की तलाश है कि शादी मंडल से मदीना बिल्डिंग तक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे आपका डिपार्टमेंट मामूल लेता है। रोज़ाना हर बंडी से 50 रुपये वसूला जाता है आपकी तरफ से। उस बारे में क्या कहेंगे, क्या इतला है आपको? ये इत्तला आपकी तरफ से पहली मरतबा मिल रही है। इस पर कल ही एक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला कल मैं विजिलेंस वालों से बात करूंगा, इसके ऊपर तहक़ीक़ात करेंगे और 1 आध दिन के अंदर इसका फ़ैसला हो जाएगा। जो भी खाती है उसके ख़िलाफ़ सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ बरक़ी शरहों में इजाफे के खिलाफ रियासती बीजेपी की तरफ से पीर को बस भवन के रूबरू धरना दिया गया। एहतजाजी कारकुनों ने इजाफा की गई बरक़ी शरहों से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। बीजेपी कायदी ने कहा कि बरक़ी शरहों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बोनालू त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। पीर को वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में बोनालू त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, मेयर JHMC बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने बताया कि वज़ीर आला ने बोनालू त्यौहार को शानदार पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। बाज़ तंजीमों की तरफ से बोनालू त्यौहार के फंड्स में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की गई है, इससे वज़ीर आला से रुजू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्यौहार के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि मनादिर के पास खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। मेयर बीर राम मोहन ने भी बताया कि बलदिया की तरफ से भी खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। संगारेड्डी में सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए फिटनेस टेस्ट का अमल शुरू हुआ। जिला एसपी चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि पुलिस फिटनेस टेस्ट के लिए आने वाले उम्मीदवारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ RTA हुकाम की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीर को मेडचल रोड पर RTA हुकाम ने खानगी बसों की जांच की। दरकार दस्तावेजात न होने और नाक़िस हालत की वजह से 20 बसों के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कैसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इतवार को हुए एडवोकेट उदय कुमार के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल करते हुए 24 घंटों के अंदर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए मलकाजगिरी के DCP रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि एडवोकेट उदय कुमार के वालिद ने अपनी 5 एकड़ अराजी अंजनालू नामी एक शख्स को लीज पर दी थी और इसी अराजी को वापस लौटाने के लिए उदय कुमार
आंजनाइलू के दामाद गुंटूर के बापटला के साकिन लोकेश पर दबाव डाल रहा था। उदय के मुसलसल दबाव से तंग आकर लोकेश ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उसने इसमें सुधीर नामी शख्स को भी शामिल किया। उदय को कत्ल करने के बाद उसकी लाश उसकी गाड़ी में रखकर जला दी गई। पुलिस ने लोकेश के अलावा सुधीर को भी गिरफ्तार किया है। लोकेश जख्मी बताया गया है। समझा जा रहा है कि लाश को जलाए जाने के दौरान वो झुलस गया होगा। संगारेड्डी में भूसे से लदी लारी रोड डिवाइडर से टकराने के बाद गिर गई, जिसकी वजह से सड़क पर भूसा फैल गया। पीर के दिन यह वाक़या पेश आया, जिसमें भूसे से लदी ओवरलोड लारी ने ओवरटेक करने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। इधर शेखपेट के इलाके में एक बेकाबू कार के उलट जाने से एक शख्स जख्मी हो गया। कार में 2 अफराद सफर कर रहे थे कि अचानक ये वाक़या पेश आया। गोलकुंडा पुलिस ने एक केस दर्ज करके कार को सड़क से हटा दिया और जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शहर के सदाबाद में वाक़े विनयनगर कॉलोनी में एक स्टोर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग लगने के इस वाक़े से रिलायंस फ्रेश में रखे हुए सामान को नुकसान पहुंचा। आग ने स्टोर के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया था। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। जुबलीस पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वरा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले गुंटूर के मुतवत्तिन 38 साला वी मेरी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया, जो नर्सिंग पेशे से वाबस्ता थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा खातून होम केयर सर्विस के तहत घरों में जाकर मरीजों की खिदमत करती और मौका मिलते ही सरक़े की वारदातें अंजाम देती। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा खातून 10 मुख्तलिफ केसों में मुलव्विस है। उन्होंने बताया कि मैरी सुनीता 9 जून की सुबह जुबली हिल्स के एक मकान से 12 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा करके फरार हो गई थी। इस तरह उसने 30 अप्रैल और 23 जून को बिलतरतीब लैपटॉप, नगद रकम 3000 रुपये, आईपैड और 15,000 रुपये का सरखा किया और फरार हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के कब्जे से 12 तोले के तिलाई जेवरात, लैपटॉप और आईपैड बरामद कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दबीरपुरे में मुस्लिम समाज को शर्म से पानी पानी कर देने वाला वाकया। रमजान में मुस्लिम नौजवान ने रोजेदार मां को घूंसे मारकर हलाक कर दिया। मरकज पाकिस्तान के ताल्लुक से अपने मौक़िफ़ और पॉलिसी को वाज़े करे, सदर मजलिस का मुतालबा। पंपोर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों का आगाज। फलकनुमा, शालीबंडा और विजयनगर कॉलोनी में स्कूल्स का इफ्तिताह। और इतवार को केसरा पुलिस हुदूद में पेश आए एडवोकेट के कत्ल का मौमा, 24 घंटों में हल, मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।